you one and all. I welcome you to today's class on 17th of August 2021. As all of you know, yesterday I just gave a brief introduction regarding the fifth lesson, Rip Van Winkle, and we discussed about the qualities. We discussed about the qualities of a student, a good responsible. Listen to me. एकता, आपका माइक रोज एक बार ऑन होता है बेटा. Please switch off your mic. So we did yesterday in the class, we discussed about the responsibilities, the duties of a student. What are the qualities of a good student? What are the qualities of a good neighbor? What are the qualities of a good citizen of a country? Okay. And you people also gave your opinion, and I also gave, and mixedly we make some progress, and we just got a gist. Gist का मतलब होता है निचोड़. We just got a gist कि भाई जो है एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? Who is a good student? One who obeys the teachers, one who is punctual, one who is regular, does the work neatly and cleanly, listens to elders, okay, and is never late. Is punctual means is never late, like that. Then we discuss the good qualities of a neighbor. Who is a good neighbor? A good neighbor never troubles you, and when you are in trouble, he or she helps you. Okay, a good neighbor is like a family. You can ask them anything. हमारे घर में ये खत्म हो गया है. We want this. Would you please help? Anytime you can ask them for help, isn't it? Anytime you can ask them for their help. And at last we discussed the duties of a responsible citizen. If we are responsible citizen, we should not. So first of all, we should not insult our country. We should not throw the garbage here and there on the road. We should not spit here and there. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मैं कोटा गई थी 2-4 दिन पहले, इधर उधर लोग थूक रहे हैं. अरे भैया, अभी तो कोरोना चल रहा है. अभी तो सोचो, कचरा फेंक रहे कार में. आपने कार में खाया रैपर, कुरकुरे खाए, और बाहर चलती कार से आप बाहर रैपर फेंक रहे हो. तो आपके पढ़े लिखे होने पे मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो. फिर यू आर एजुकेटेड बट यू आर नॉट. इन प्रैक्टिकलिटी यू आर नॉट एजुकेटेड. तो इस तरह के काम हमें नहीं करने हैं. तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ मैन whose name was Rip Van Winkle. As yesterday also I told you. So today I will just read the lesson. First I will read a little paragraph, and then I'll tell you the meaning of that. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. Good-natured means his nature was very good. Whose nature? Patanjali's nature? Rip's nature. पूरा इतना बड़ा नाम है तो रिप वैन विंकल बार बार बोलने की जगह हम लोग बोलेंगे रिप. तो रिप्स नेचर वाज वेरी गुड, बट वन प्रॉब्लम वाज देयर. yesterday we discussed the good qualities and bad also. So bad quality was that he was a lazy man. Lazy is one who does not want to do any work, just as in lazy frog. Got it? Got it, everyone? Okay. Who goes away into the hills and falls asleep. So once he just went to the hills and there he fell asleep. उसको नींद आ गई. Okay. When he awakens, जब वो उठा, when he awakens, 20 years later, OMG, 20 years, for 20 years can anybody sleep? For 20 years later. Yes, anybody has got any problem? तेज आवाज नहीं आ रही, वो धीरे आ रही है. तो आपका इशू है बेटा प्रॉब्लम. मैम आ रही है एकदम से. यस मैम क्लियर है केस. नो मैम आपकी आवाज क्लियर है. कर रखी है. Christina, am I audible clearly, Christina? यस मैम. तरणवीर, प्रथमेश, रानी कुमारी, योर वॉइस इज क्लियर. ओके. तो कौन है जो बोल रहा है वॉइस इज नॉट क्लियर? तो आपका नेटवर्क इशू है बेटा. आपके कई बार ऐसा भी होता है. ये बात मैंने पहले भी बोली है. So many times I have told you कि आपके घर के आसपास नेटवर्क इशू हो सकता है. तो हो सकता है आपको मेरी आवाज कम आए, पर यहाँ पे कोई नेटवर्क इशू नहीं है क्योंकि बाकी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है.
So let me come to the point again. So Rip was a very good natured man. This was his good quality. But the bad one was he was a lazy man. So once he went to the hills and there he slept, and he slept for 20 years. Not 20 days, 20 hours, 20 years. Rip finds that quite a few things have changed. अब आप imagine करो. Now imagine. अचानक मैं आपको 20 साल के बाद एक सड़क पे दिख जाती हूँ. मैं कैसी होंगी 20 साल के बाद? बुड्ढी? अरे थैंक यू. और यंग दिखूंगी, लेकिन हो तो उम्र से तो ओल्ड हो जाऊंगी ना. ठीक है. जैसे अभी अगर मैं 40 इयर्स की हूँ तो 20 साल के बाद मैं 60 इयर्स की हो जाऊंगी, है ना? राइट. ठीक है. तो ऐसे करके आप कैसे हो जाओगे? राइट नाउ आप लोग 5th स्टैंडर्ड में, आप 10 इयर्स के हो, लगभग आप 10 इयर्स के हो. तो 20 इयर्स के बाद आप 30 इयर्स के लड़के जो है वो आदमी बन जाएंगे, अच्छी दाढ़ी मूछ वाले, है ना? और गर्ल्स जो है वो अच्छी स्मार्ट यंग गर्ल्स बन जाएंगी. 30 इयर्स की गर्ल्स. किसी की शादी हो चुकी होगी, कोई डॉक्टर बन गया होगा, कोई पुलिस बन गया होगा, कोई कहीं और टीचर बन गया होगा, कोई कहीं कुछ नौकरी कर रहा होगा, है ना? इमेजिन. राइट. सो ऐसे इमेजिन करके देखो 20 इयर्स में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं. अपने दादा दादी को पूछिएगा, अपने मम्मी पापा को पूछिएगा कि 20 साल पहले का वक्त कैसा था. दे विल टेल यू. 20 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन मैं आपको ऐसे कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा रही होंगी. द टीचर्स विल बी टीचिंग थ्रू द कंप्यूटर्स. Though it is not for permanent, it is because due to corona only, but technology कितना ज्यादा develop हो गई है that I am teaching you through computer. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains. Now, what do you mean by the foothills? Foothills का मतलब होता है बेटा, जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन बने हुए, तो इसके जो नीचे का पार्ट है ये, इसको बोलते हैं फुट हिल्स. आपको सबको पता है कि फुट किसको बोलते हैं? फुटेज नीचे है. मेरा जो पाँव है, पंजा, जहां पे मैंने चप्पल पहन रखा है, दैट इज माय फुट. तो फुट हिल्स का मतलब नीचे का पोर्शन, पहाड़ी के नीचे का पोर्शन. सो एट द Catskill, द नेम ऑफ द माउंटेन वाज Catskill. Mountain was a little village. There was a little village. In that village lived a simple, good-natured fellow. It is not fellow. Fellow means a human being. Named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor. Yesterday we discussed about the neighbor's quality. That's why we discussed. I wanted you to know about the qualities of a good neighbor. So, he was a kind neighbor, ready to help anyone. He was so good-natured, he helped anyone. He was ready to help anyone. ऐसा नहीं कि मैं इसी की हेल्प करूंगा या इसी की करूंगा. Anyone who asked for help, Rip would help. The children, everyone in the village liked him. Everyone in the village, he was liked by everyone. सब उसको पसंद करते थे. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. जो गांव के बच्चे थे, they felt very happy. है ना? आप उसको देख के खुश होते हो, जो आपको समझता है, आपकी बातें सुनता है, आपके साथ खेलता है ना? उसी को देख के आप खुश होते हो. So, जो गांव के बच्चे थे वो रिप को देख के बहुत खुश होते थे because he played with them. क्योंकि वो उनके साथ खेलता था. He taught them to fly kites. वो उनको पतंग उड़ाना सिखाता था. And shoot marbles. I think all of you know the meaning of marbles. जो कांच के गोल गोल कंचे आते हैं. हाँ, जो आप लोग कई बॉयज खेलते हैं. आजकल कम हो गया. बोलते हैं. ठीक है. तो वो कंचे जो खेलना उसको. And told them long stories. And sometimes Rip used to tell them long stories. बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है ना? स्टोरी की चीजें हमें जल्दी याद हो जाती है. So all the children of the village liked Rip because he taught them to fly kites. He told them long stories. He shoot marbles with them. ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन कई बार आएगा, जगह जगह आएगा कि गांव के बच्चे रिप को पसंद क्यों करते थे. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट पैराग्राफ. The only problem with Rip was that he was very lazy. अभी गुड क्वालिटी की बात हो गई, अब बैड क्वालिटी. उसमें बुराई क्या थी? अच्छा था, सबकी हेल्प करता था, अच्छा नेबर था, बच्चे पसंद करते थे, लेकिन उसमें एक बहुत जबरदस्त बुराई थी. He was very lazy. आलसी था वो एक नंबर का. He did no work on his farm and just idle away his time. उसका एक खेत था, लेकिन उस खेत को ऐसे ही छोड़ रखा था, उसने पड़ा था. अभी हम लोग सोचते हैं, हम कॉलोनी में रहते हैं, हम सोचते हैं काश कि हमारे पास खेत होता, हम ये सब्जी लगाते हैं, हम वो सब्जी लगाते हैं, हम ये फ्रूट उगाते हैं, करते हैं ना अपन लोग, है ना? हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते हैं, हम कर नहीं सकते. लेकिन उसके पास खेत था, फार्म था,
but he did not work on that farm due to his laziness, because he was very lazy. His fences were falling to pieces. Now, what do you mean by fences? Suppose this is Rip's farm. Now, this ये जो side पे जो लगी रहती है, these are called fences, boundaries. Okay? आप में से कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा. I don't want to listen to anything. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, if you are not understanding anything, please raise your hands up, और later on I will give you a chance, तब आप पूछ सकते हैं. अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसमें मेरा फ्लो होता है फिर. So fence, these are the fence. जो खेत के आसपास एक बाउंड्री बना देते हैं, that is called fencing, fence. So his fences were falling to pieces. जो उसकी खेत के आसपास बाउंड्री बनी हुई थी, वो भी बहुत साल से देखी नहीं थी उसने, उसकी टेक केयर करता ही था, तो वो टूट टूट के गिर रही थी. इट वॉज कमिंग जस्ट गेटिंग डाउन, फॉलिंग डाउन. हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे. उसकी गाय भी आवारा जानवरों की तरह हो गई थी. जैसे होते ना, एक तो होते हैं भाई आपका कई डॉग्स होते हैं, उनके मालिक होते हैं. ये प्रथमेश का डॉग है, ये रानी कुमारी का डॉग है, ये निकिता का पपी है, ये प्रज्वल का पेट है. लेकिन जो सड़क पे कुत्ते घूमते, क्या उनका कोई मालिक होता है? नहीं. तो उनको बोलते हैं ऐसे स्ट्रीट डॉग्स, एस्ट्रे घूमते, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनका कोई मालिक नहीं. वो रात को सड़क पे ही सोते हैं, कई बार तो गाड़ी उनको कुचल जाती है, कुछ भी मिल जाता है खा लेते हैं. लेकिन जो मालिक वाले डॉग्स होते हैं, पपी होते हैं, पेट्स होते हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है. दे आर टेकन केयर ऑफ. उनको अच्छा खिलाना, नहलाना, शैम्पू से नहलाया जाता है, अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है, उनके सोने का घर जगह बनाई जाती है. सर्दी में कई लोगों को मैंने देखा है, वो अपने डॉग्स को स्वेटर भी पहनाते हैं, है ना, आपने भी देखा होगा. तो इस तरह से. लेकिन जो हमारा रिप था, वो अपनी काव की बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था. ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज काव. तो उसकी गाय जो गांव में आवारा ऐसे घूमती रहे, ऐसे मीन्स ऐसे घूमती रहती थी. वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म. अब जब आप कुछ भी नहीं उगाते हो खेत में, जब आप फसल उगाते हो तो फसल उगती है, पर आप जब कुछ भी नहीं उगाते हो तो आपकी खेत में कुछ भी अनवांटेड चीजें उग जाती है. अनवांटेड प्लांट्स, कुछ भी, खरपतवार बोलते हैं हिंदी में, ये आपके ईवीएस में भी है. इनको बोलते हैं वीड्स. वीड्स का मतलब अनवांटेड थिंग्स, WEEDS, वीड्स. वीड्स मीन्स उन प्लांट का कोई यूज नहीं है, उसमें कोई सब्जी भाजी कुछ नहीं लगेगा, उसको आपको काट के निकालना ही पड़ेगा, उल्टे आपकी जमीन को खराब करेगा वो. तो क्योंकि अपने खेत पे जाता नहीं था, वो अपने खेत पे जाता नहीं था, उसकी टेक केयर नहीं करता था, तो इस वजह से उसकी खेत पे बहुत सारे वीड्स उग गए थे. Rip's constant companion was his dog named Wolf. Now यहाँ ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं. रिप का एक कांस्टेंट कंपेनियन था, एक साथी था जो हमेशा रिप के साथ रहता था. वो कौन था? उसका डॉग. लेकिन उसका नाम क्या था? वुल्फ. डॉग है लेकिन नाम क्या है उसका? वुल्फ. वुल्फ, WOLF, वुल्फ. और वो था कौन? वो एक डॉग था. तो डोंट गेट कंफ्यूज. रिप का कांस्टेंट कंपेनियन वुल्फ नहीं था, डॉग था जिसका नाम वुल्फ था. अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? ओके. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग. अब ताकि उसको काम ना करना पड़े, बिकॉज ही वॉज लेजी, सो उसको काम ना करना पड़े, इसके लिए वो अंदर फॉरेस्ट में चला जाता था, और फॉरेस्ट में जाके किसी पेड़ के नीचे कहीं पे भी अपने डॉग को लेके जाता था और सो जाता था, ताकि उसको काम ना करना पड़े, क्योंकि लेजी था, और लेजी लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं. One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. एक दिन रिप चलता गया पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि उसका गांव कहाँ था? पहाड़ों के नीचे. तो वो पहाड़ पे चढ़ता गया ऐसे, और पहाड़ में बहुत ज्यादा चढ़ गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून पूरी लेट हो चुकी थी. लेट आफ्टरनून का मतलब शाम की 3-4 बज जाना, ऐसे शाम का 3-4 बज गई थी. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb. वो बहुत ज्यादा चढ़ गया था, तो अब थक भी जाते. पहाड़ चढ़ेगा तो इंसान थकेगा. अगर आपको मैं पहाड़ चढ़ाऊंगी, एक सड़क पे चलाऊंगी, तो आप ज्यादा किसमें थकोगे? पहाड़ चढ़ने में या सड़क चलने में? पहाड़ चढ़ने. इसीलिए मैंने आपको बताया करके. माइक ऑन मत करो, ज्यादा समझदार लोगों माइक ऑन मत करो. माउंटेन यू कैन शो लाइक दिस, माउंटेन चढ़ने में. यस. तो माउंटेन चढ़ने में बहुत ही became very tired. So what did he do? Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. वो सो गया.
और दिन में सपने देखने लग गया। बोलते हैं कि दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, है ना, कि दिन में सब आंख खुली आंखों सपने देख रहे हो। तो सो गया एंड डे ड्रीमिंग दिन में। इट वॉज सून इवनिंग, फटाफट शाम हो गई, क्योंकि 3-4 जब 4 बज जाती है शाम की, तो शाम होने में क्या टाइम लगता है, फिर फटाफट 1 घंटे में शाम हो जाती है। तो शाम हो गई एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। अब उसको पता चला कि अगर मैं अपने गांव पहुंचूंगा तब तक तो रात हो जाएगी। एंड हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी रिप, वो अपने डॉग के साथ, बच्चे देखो पीछे उसके आ रहे हैं, बच्चे सारे खुश है। रिप को आप देख सकते हो, इन योर बुक्स इट इज गिवन। Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around, उसने एकदम देखा, जैसे अगर मुझे अभी कोई दरवाजे पे आवाज दे तो मेरा ध्यान इधर है, मैं एकदम देखूंगी हाँ कौन, ऐसे। तो he looked around and saw a short old man, एक short कम हाइट का, short मतलब जिसकी हाइट कम हो, short old man with thick hair and a grizzled beard. उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जिसकी ग्रिजल्ड, ऐसे बड़ी हुई दाढ़ी थी, है ना, वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, वो एक बैरल लेके उसके पास आ रहा था। नाउ ऑल ऑफ यू वुड वांट टू नो, मैडम बैरल क्या होता है? तो बैरल बेटा एक ड्रम टाइप का होता है। मैम उसको कभी शिप में भी लिखा जाता है सामान रखने के। तो माय ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड बट आई एम ट्राइंग। ये तबला नहीं है, हाँ, ये बैरल है। ऐसे इसमें कोई लिक्विड भर सकते हैं, ऐसा बैरल होता है। बैरल में ज्यादातर लिक्विड भरा जाता है। डोंट स्विच ऑन योर माइक, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माय क्लास। सो बैरल आई हैव मेड हियर, इस तरह का समथिंग लाइक दिस। जरूरी ये शेप हो, अलग अलग शेप का भी थोड़ा हो सकता है, पर ज्यादातर यूजुअल बैरल जो होता है वो ऐसा होता है। सो रिप सॉ अ मैन, ओल्ड मैन, शॉर्ट हाइटेड विथ ग्रिजल्ड बियर्ड, उसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी और वो उसकी तरफ बैरल लेके आ रहा था। He made signs to help him carry the barrel. उसने बोला कि प्लीज, मेरी इशारे से बोला मतलब मुंह से नहीं बोला, उसने बोला प्लीज, जैसे मैं यूं कहूं, जैसे आपको कहती हूँ, तो आपको समझ में आ जाता है कि मैडम बोल रही रुको, है ना। अगर मैं बोलती हूँ ऐसे चलो, तो आपको समझ में आ जाता है। अगर मैं बोलती हूँ तो आपको समझ में आ जाता है कि चुप रहना है। अगर मैं, प्रतीक आज क्या बात है, कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है तेरे को? 5वीं बार तूने माइक ऑन किया अभी। अगर मैं आपको कहूंगी इशारा करके ऐसे साइन लैंग्वेज में, इस मीन कि आप कॉपी में नोट कर लो, है ना, तो आप समझ जाते हो। इन द सेम वे दैट ओल्ड मैन ने उसको इशारे से बोला कि प्लीज मेरी ये बैरल उठाने में, कैरी करने में हेल्प करो। और आपको पता है रिप वाज अ हेल्पिंग नेचर्ड, गुड नेचर्ड मैन, ठीक है। सो रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, फटाफट, जबकि उसको जानता भी नहीं था, वो स्ट्रेंजर था। वो स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, वो उस आदमी को जानता भी नहीं था, फिर भी वो गया दौड़ा एंड हु कॉट हिज हैंड टाइटली, और उस आदमी ने रिप का हाथ कस के पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। अब वो दोनों मिलके एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पे उनके जैसे, उस आदमी के जैसे और भी आदमी थे जो थोड़े अजीब दिख रहे थे। ऑड लुकिंग, ऑड का मतलब थोड़ा ऑड दिखना, ODD, ऑड, ऑड इवन जो आप करते हो। एक होता नॉर्मल लुकिंग, एक होता ऑड लुकिंग, थोड़े अलग से दिख रहे थे। ओके, प्लेइंग 9 पिंस, 9 पिंस एक गेम होता है, वो वहां पे वो खेल रहे थे। ये आप देखो 9 पिंस इधर दिखा रखा है, जिसमें बॉल से मारते हैं इसको, है ना, 9 पिंस। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, पर उन सबके जो सारे आदमी थे वो सब एक जैसे थे, काफी कुछ, उनके ड्रेस भी एक जैसे थे, सेम वे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स, और उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। बियर्ड्स मतलब दाढ़ी, बियर्ड, BEARD, बियर्ड मतलब दाढ़ी। ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, सबकी दाढ़ी अलग अलग शेप और कलर की थी, किसी की ग्रे कलर की, किसी की रेड कलर की, किसी की ब्राउन कलर की, ऐसे अलग अलग कलर की दाढ़ी थी, लेकिन सबकी थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस, हालांकि वो एक गेम खेल रहे थे, लेकिन उनके फेसेस, अब जब आप गेम खेलते हो तो आप ऐसे खेलते हो क्या? ऐसे खेलते हो? जब गेम खेलते हो तो हम कितने एक्साइटेड रहते हैं, ले प्रथमेश कैच कर, चल किश्मिता कैच, फेंक बॉल, फेंक जल्दी से, अर्शिका मुझे देना, अनन्या क्या कर रही हो, लेट क्यों कर रही हो, ऐसे हम लोग कितना एक्साइटमेंट हो जाता है हमें।
है ना। तो हम ऐसे खेलेंगे मुंह बंद रख के, ऐसे मुंह बंद रख के कैसे खेलेंगे, है ना। तो लेकिन गेम खेल रहे थे, दो दे वर प्लेइंग अ गेम बट दे वर लुकिंग वेरी सीरियस, ऐसे very seriously they were playing the game, and there was silence था, एकदम शांति. The only sound was the noise of the balls, खाली balls की आवाज आ रही थी जिन बॉल से वो खेल रहे थे. In the mountains like thunder, क्योंकि माउंटेन्स में ऊपर तो लोग रहते नहीं है, आपको पता है, वहां आवाज एको होती है. तो जब बॉल टकरा रही थी तो बिंग बिंग बैंग बैंग की आवाज, बॉल की टकराने की आवाज पूरे माउंटेन में अच्छे से थंडर की तरह आ रही थी, जैसे कोई बादल गरज रहे हो गड़गड़ गड़गड़ करके ऐसे. As Rip and his companion reached them, जैसे ही रिप और उसके साथ वो जो बूढ़ा आदमी वहां पहुंचे, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. They stopped playing and they looked at Rip like this. क्योंकि उनको थोड़ा अजीब आदमी लगा, उनके जैसा नहीं था वो. So they were staring at him. Fixed gaze का मतलब टकटकी लगाए देखते रहना, ऐसे देखते रहना, fixed gaze. Okay. Rip was really frightened. अब जब रिप ने ये सब देखा, अब उसको लगा कि भैया मैं तो मुश्किल में तो नहीं फंस गया कहीं. तो he was frightened, वो डर गया. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. उसके जो साथी थे उस बूढ़े आदमी के, उन्होंने उस जो बैरल के अंदर जो लिक्विड था उसको उन्होंने ग्लासेस में निकाला, है ना, ग्लास में निकाला, टम्बलर में, ग्लास में, और रिप को बोला कि इसको पियो. क्या बोला रिप को? इसको पी जाओ. रिप ड्रिंक इट. रिप ओबेड एज ही वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर. रिप ने वो पी लिया क्योंकि वो डरा हुआ था. उसको लगा बाप रे ये सब एक जैसे लोग हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, ये लोग मुझे कोई कच कर नहीं दे, दे शुड नॉट हार्म मी. सो व्हाट डिड रिप डू? रिप ड्रैंक दैट लिक्विड. Since he was thirsty, he drank a few more glasses. Or because he was thirsty the whole day, he was roaming in the hills, so he was more thirsty. So he drank some more glasses of that liquid and slowly fell into a deep sleep. Who slept? Who fell into sleep? Rip. Yes, Anshika. Correct answer. Without switching on the mic, that girl has given the answer. This is the way, and I saw her giving the answer. So Rip fell asleep. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब उसकी नींद खुली तो वो वहां नहीं था जहां उसने वो ड्रिंक पिया था, वो वहां था जहां उसे वो आदमी पहली बार मिला था, जहां उस आदमी ने उसको कहा था प्लीज हेल्प मी रिप एंड विंकल, रिप एंड विंकल. वहां पे रिप ने अपने आप को वहां पे पाया. कि रब दिस आईज, रब योर आईज एवरीवन. सुबह उठते हो कैसे अपनी आईज को रब करते हो? यस, वेरी नाइसली प्रिशा इज डूइंग. आशी इज ऑल्सो डूइंग नाइसली. प्रथमेश वेरी गुड. कुसुम वेरी गुड. रानी कुमारी वेरी गुड. ओके. अर्शिका, हाँ यस. ऐसे रब नहीं करते, ऐसे तो वाइप करते हैं बेटा. रब कैसे करते हैं आंखों को? अर्शिका, अर्शिका शर्मा, हाँ ऐसे रब ऐसे करते हैं. गुड. यस एकता वेरी गुड. हाँ ऐसे सुबह उठ के अंगड़ाई लेते हैं ना हम लोग, ऐसे आंखों को रब करते हैं, हमारी आंखें खुलती नहीं है. सो लाइक दैट, राइट, द सेम वे रिप डिड. ओके, ही रब्ड हिज आईज एंड इट वाज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, जैसे आज भी है. टुडे इज अ सनी मॉर्निंग बिकॉज इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, और धूप अच्छी निकल रही तेज. तो दिस इज कॉल्ड अ सनी मॉर्निंग. सन अच्छा खिला हुआ है. सो सनी मॉर्निंग. श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप. रिप ने मन में सोचा अरे क्या मैं पूरी रात यहाँ पे सोया? नहीं नहीं, पूरी रात तो मैं यहाँ पे नहीं सोया. He looked around for wolf. उसने अपने आसपास देखा कि वुल्फ कहाँ है, but he was nowhere. Who was nowhere? गौरव, who was nowhere? Drip. Rip was nowhere. No, ma'am. Dog. Dog, yes. Dog was nowhere. मैंने जब गौरव को बोला है तो खाली गौरव ही ऑन करेगा माइक. ये मैं आपको आखिरी और फाइनल वार्निंग दिया है, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी. जब तक आपको बोला नहीं जाए आपको माइक ऑन नहीं करना है. I have not slept here all night, thought Rip. He looked around for wolf. उसने wolf को देखा, but he was nowhere. Wolf was nowhere. Rip whistled for him. Rip ने सीटी बजाई उसके लिए. Anybody know how to whistle? Raise your hands up. Whistle करना किसको आता है? Yes, तरणवीर. माइक ऑन करो, सबको whistle करके दिखाओ. Yes. Now Taranveer is whistling. Okay? Taranveer is whistling. Okay. Hands down, everyone.
सो विसल आपको पता है, विसल की स्पेलिंग देखो, WHISTLE. So T is silent in this. Whistle. Whistle. T is silent. Okay. Whistle for him. तो उसने सीटी बजाई. Wolf, wolf. Then he shouted. No dog was to be seen. लेकिन कोई उसके पास नहीं आया. Where has this dog gone? ये dog कहाँ चला गया है? He muttered to himself. उसने अपने आप से कहा, क्योंकि वहां तो और कोई था ही नहीं जिससे बात करे. Muttered word हमने और क्या सुना है पहले? आशी? Yes, ma'am. Muttered. He muttered to himself. Where have you heard this word before now? Jaldi. Flying together. Very good. Where the hunter muttered to himself. Very good. मैसेज किया था तभी उसको बताया. वेदांत क्या प्रॉब्लम है? तू बार बार माइक ऑन क्यों कर रहा है? So he muttered to himself, क्योंकि वहां कोई बात करने वाला नहीं था, उसने खुद से कहा कि ये कहाँ चला गया है डॉग. He muttered to himself. He began to descend. Descend का मतलब नीचे आना. Ascend का मतलब ऊपर जाना. Ascending, descending order में आप मैच करते हो, लिखते हो ना? Ascending order, descending order. Ascending का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Descending का मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. उल्टा नीचे आ रहे हो, कम ज्यादा से कम की तरफ आना, तो ऊपर से नीचे आना. So descend the mountain to go back to his village. अब वो अपने गांव की तरफ बढ़ा. As he neared the village, जैसे वो गांव के पास पहुंचा, he met a number of people, but he didn't know any of them. उसको बहुत सारे लोग मिले, लेकिन उनमें से वो किसी को भी नहीं जानता था. कहानी का ट्विस्ट आपको अब पता चलेगा. वैसे आपको पता है थोड़ा सा पहले से. The villagers also stared at him equally surprised. गांव वाले भी उसको देख रहे थे, हैं ये कौन आदमी है, ऐसे ऐसे करके देख रहे थे. Who is this man? Said one. एक ने पूछा भी कौन आदमी है. I have never seen him before. इसको तो मैंने कभी पहले देखा नहीं है. Said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. अरे इसकी सफेद दाढ़ी देखो, इसकी दाढ़ी देखो, और इसके फेस पे झुर्रियां पड़ गई है. जब बुढ़े हो जाते हैं ना तो झुर्रियां पड़ जाती हैं चेहरे पे. अभी आपके चेहरे पे बिल्कुल झुर्रियां नहीं है, मेरे भी नहीं है, लेकिन 10-15 साल बाद मेरे उस पे झुर्रियां आ जाएगी. जब बुढ़े हो जाते हैं तो स्किन, हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी वो कम होने लग जाती है, तो इससे झुर्रियां, रिंकल्स पड़ जाते हैं, उनको रिंकल्स बोलते हैं. ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन. तब रिप को पता चला है मेरी बियर्ड, तो रिप ने अपनी दाढ़ी को ऐसे करा, ऐसे हाथ लगाया, तो अरे मेरी दाढ़ी कब से आ गई. And to his astonishment means he was surprised. He was very much surprised. He found his beard had grown a foot long. उसकी दाढ़ी 1 फुट लंबी हो चुकी थी. आपका जो स्केल होता है 1 फुट, 1 फुट का जो आपका स्केल होता है लकड़ी वाला, इतनी लंबी हो चुकी थी. And it was all white. और पूरी जो beard थी, that was, what color was it? It was white, white beard. And an old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी औरत उसके पास चल के आई ऐसे ऐसे, और उसको देखा, ऐसे देखती रही उसको. बूढ़ी औरत ऐसे चल के आई, उसको देखा. And then she exclaimed, और तब उसके चेहरे पे हंसी आई, ऐसे ऐसे करके exclaimed, it is Rip and Wrinkle. Welcome home again, old neighbor. अरे मेरे पुराने पड़ोसी, तुम्हारा स्वागत है. Where have you been these 20 long years? तुम कहाँ थे पिछले 20 सालों से, तुम कहाँ थे. Now here at this point of the story you come to know कि रिप जो वहां पे सोया था, वो कितने टाइम के लिए सोया था? 20 इयर्स के लिए. यस. So I am just taking attendance, and today's homework for you is just read this lesson aloud. कौन ऑन कर रहा है बार बार माइक? किसी को बीमारी लग रही है माइक ऑन करने की? सारी बीमारी निकाल दूंगी मैं. So attendance is over. So what have you learned from this story? That yes, we should always listen to our elders and we should not be lazy at all. अब रिप में 10 अच्छाइयां थी,
लेकिन एक बुराई थी लेजीनेस की, तो उस लेजीनेस के कारण उसकी जिंदगी के बहुत कीमती 20 साल, सोचो मैं आपको एक ड्रिंक पिला दे और 20 साल के बाद आप अचानक बड़े होके निकल रहे हो, आपकी पढ़ाई नहीं हुई, आपका करियर नहीं हुआ। हिमांश, माइक ऑफ करो हिमांश। हिमांश, हिमांश सोलंकी। आपका करियर कहाँ पहुंचेगा, आप बड़े हो जाओगे लेकिन दिमाग आपका बच्चे जैसा ही रह जाएगा, कोई बुद्धि नहीं आएगी, आप नई नई चीजें नहीं सीख पाओगे। इमेजिन करके देखो उसकी जिंदगी के कीमती 20 साल, जब वो जवान था, यंग था, बहुत कुछ कर सकता था, वो जिंदगी के 20 इयर्स उसके ऐसे ही वेस्ट हो गए और ही कुड नॉट डू समथिंग फ्रूटफुल। सो टुडेज होमवर्क इज टू रीड दिस लेसन थरली, नाइसली, इसकी रीडिंग करनी है आपको। All of you are supposed to